Now this S block element is quite a easier chapter, hardly 2 or 3 days chapter. So S and P both are quite smaller chapters, okay, because the number of portions have been deleted. After S and P block, we will be coming to the equilibrium. Okay. Okay. Now, in the case of S block elements, we know that first we have to study about group 1. Now, what is the name of group 1? Alkali metals. Why they are called as alkali? Because their hydroxides, their oxides dissolve in water. Their oxides dissolve in water to form alkali. Alkali means उनके जो hydroxides होते हैं, hydroxides are water soluble base. Okay, so these group 1 elements are called as alkali metals because they dissolve in water. When they react with oxygen, they form oxides. They dissolve in water to form hydroxides like sodium hydroxide, potassium hydroxide, which are water soluble base, and these are commonly called as alkali because their oxides dissolve in water to form alkali. Alkali are the hydroxides which are water soluble base. For example, if I am taking the case of sodium hydroxide, potassium hydroxide, these are the example of alkali. Okay. Now the various elements of this series are lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and francium. These are the various elements. Formula: lithium is Li, sodium is Na, potassium, rubidium, cesium, francium. Now out of this francium is radioactive. Okay, francium is a radioactive element. Now in the can you read case, out? Is a little blur. yes, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. You can open your NCERTs also at home also. It will help you out. S block एलिमेंट स्टार्ट करा रहे हो आज? हाँ, S ब्लॉक, क्योंकि बेटा बीच में ना मुझे को सीबीएसई के काम से जाना है, तो मैं थर्मोडायनेमिक्स में और इक्विलिब्रियम में ना कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं चाह रही, तो इसलिए हम सोचे थे पहले ऐसा ब्लॉक छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इजी चैप्टर्स हैं, वो खत्म करा देती हूँ. फ्रेंसियम, FRANCIUM. हम फिर जो भी पीरियोडिक टेस्ट आएंगे उसमें एस ब्लॉक और हाइड्रोकार्बन से आएगा. हाँ, जो कराएंगे पीरियोडिक में वही आएगा. ऑर्गेनिक तो आएगी, ऑर्गेनिक तो कराई है ना चैप्टर. यस, हम हाइड्रोकार्बन. तो अभी तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे पीरियोडिक में तो दिसंबर एंड में होंगे, जनवरी में होंगे, मतलब वो 18 के बाद, क्योंकि अब 16-17 को तो बोर्ड के एग्जाम ही चल रहे हैं, 18 तक तो इनफैक्ट फुल सेंटर है, तो उसके बाद ही तुम्हारे मेरे ख्याल से पीरियोडिक स्टार्ट होंगे. क्या चीज? प्रैक्टिकल पीरियड है ना वेडनेसडे को? तो अगर वेडनेसडे को स्कूल ऑफलाइन भी हुआ तो मैं करा दूंगी, मैं हूँ वेडनेसडे को. होंगे. Okay. Now lithium atomic number I am telling you. Their general electronic configuration is NS1. Atomic number. General electronic configuration. Now electronic configuration generally it is called NS1 because they have one electron in the s orbital. In the case of lithium, atomic number is 3.
3 means 2 and 1. Okay, sodium means 11, 2, 8, 1. तो इनके बीच में डिफरेंस 8 का, नेक्स्ट डिफरेंस कितने का होगा? पोटेशियम इज atomic number of potassium 19. Again the difference is 8. So 2, 8, 8, 1. अब नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा? 18. ऐसे ही होते हैं ना, 8, 2, 2 तो है ही नहीं यहाँ पे, 8, 8, 18, 18. तो नेक्स्ट आप खुद निकाल सकते हो इनके एटॉमिक नंबर्स. 18 ऐड करो 37. What will be the electronic configuration? 2, 8. ठीक है, नेक्स्ट 37 है, अगेन ऐड 18. कितना हो गया? 56. अगेन नाउ ऐड 32. 56 कैसे हो गया? 7 में 8 ऐड किया तो. Okay. So you can write now their electronic configuration. 2, 8, 8, 18, 18, 1. 32 ऐड किया तो 2, 8, 8, 18, 18, 32 and 1. So all of these have 8 electrons, sorry, 1 electron in its outermost shell. Okay. Now another thing, I am telling few points I am trying to cover in the table only. Okay. Now there is a special characteristic of these elements that they give a flame color. Reason I will tell you afterwards, but just write their flame color. Whenever we are putting them on the flame of a Bunsen burner, they give typical color. Like in the case of lithium, it is crimson red. All the reasons I will tell you afterwards. Crimson red. Sodium is yellow. Potassium violet. Okay, last element francium we hardly consider because it is a radioactive element. Next is red, violet and blue. Rubidium is red, violet and this is blue. Francium is radioactive, so while doing the properties we hardly consider francium. Okay. So now after the electronic configuration, now I am coming to their general properties, which is just a recap of your class 10th. 10th में था ना आपको कुछ periodic table? था ना? Yes, ma'am. Okay. Now first of the physical properties, atomic radii. What is the trend of increasing order of atomic radii? Down the group increases. Down the group it increases. Lithium, I am writing it like this. This is the increasing order. Okay, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. Francium we can leave also. This is the increasing order of atomic radii. What is the reason why it increases? Ma'am, number of shells added up. It increases down the group due to increase of in number of shells. अच्छा, अपने जो रिस्पेक्टिव पीरियड है उनका एटॉमिक रेडियस इन जनरल ज्यादा होता है कम होता है? इन जनरल अगर मैं देखूंगी, in general if I am taking the atomic radii, suppose I am taking the atomic radii of lithium in their respective period, beryllium, boron, carbon. What about the atomic radii of lithium? What is the trend of atomic radii? See in the periodic table, आपके बिल्कुल बेसिक periodic chemistry है. यहाँ पर इंक्रीज करते हैं, यहाँ पर डिक्रीज करते हैं अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में. लिथियम का सबसे ज्यादा होगा. ठीक है, तो जस्ट राइट ऑन दिस पॉइंट आल्सो. Alkalis have the
highest may have the greatest atomic radii? लिखो आई एम टेलिंग इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स नहीं बेटा नोबल गैसेस को हम सेपरेटली कंसीडर करते हैं ठीक है क्योंकि उनमें तो वैन डेर वाल्स रेडियाई होता है बाकी सब में या तो मेन रेडियाई होते हैं ना या तो एटॉमिक आयनिक रेडियाई है या कोवलेंट रेडियाई है मेटालिक रेडियाई है नोबल गैसेस को हम कभी भी जनरल उसमें कंसीडर नहीं करते ठीक है इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड दे हैव द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई ब्रैकेट में लिख लो एक्सेप्ट नोबल गैसेस in their respective period they have the largest atomic radii उसका रीजन मैं अभी लेकर आ रहा है प्रोडक्ट टेबल में कर चुकी हूँ okay so this was the first property now the second property is ionization energy what is the meaning of ionization energy what is the meaning of Some energy ionization? required to remove an electron from an atom. Only from an atom is it complete it is the energy required to remove Gaseous outermost, atom. outermost electron from an isolated gaseous atom. All of you know the meaning of ionization therapy. Should I dictate or it's okay? It is the energy required to remove outermost electron. Energy required to remove outermost electron from an isolated gaseous atom. Energy required to remove outermost electron from an isolated gaseous atom. Now, what is the trend of ionization enthalpy? It decreases down Decreases the down group. the group. Decrease down the group. Why it decreases down the group? Because Reactivity increases. reactivity चलो मैं बता रही हूँ मैम क्योंकि रिएक्टिविटी अगर इंक्रीज होगी तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर पाएगा तो उसकी एनर्जी एंथैल्पी डिक्रीज ही होगी partially correct है not a very good answer but partially correct ionization enthalpy decreases down the group because of the increase in size because of the increase in size valence electron is away from the influence of nucleus because with the increase in size it decreases down the group because with the increase in size valence electron because with the increase in size valence electron becomes away from the influence of nuclear charge the effective nuclear charge decreases कुछ भी लिख सकते हैं valence electron is away from the influence of nuclear charge oblique डालकर लिख सकते हैं effective nuclear charge decreases इसमें स्क्रीनिंग पर थोड़ा सा पॉइंट आ जाएगा ठीक है और effective nuclear charge decreases clear away from the nucleus or effective nuclear charge decreases now the third property is very important property है इसमें आपने मुझे किया कि नहीं that is the hydration enthalpy थोड़ा सा आपने किया हुआ है hydration enthalpy first right what is the definition of hydration enthalpy symbol is delta H hydration hydration enthalpy can anyone tell me the definition no okay right it is the energy released it is the energy released when a isolated ion it is the energy released when a isolated ion gets solvated with water get solvated the water is a solvent get solvated with water
आगे लिखो, smaller is the size, smaller is the size of the ion, smaller is the size of the ion, more easily, smaller is the size of the ion, more easily it will be hydrated. More easily it will be hydrated. Bracket में लिखो, bonds will be stronger. Bonds with water will be stronger. More easily it will be hydrated. Write in bracket, bonds with water will be stronger. अच्छा, ये सबको मालूम है कि मैं समझा रही हूँ इसको, नो नीड टू राइट, जो मैं डायग्राम बना रही हूँ केवल समझने के लिए, ठीक है। अब सपोज आपके ये लिथियम आयन है, नाउ वी नो दैट लिथियम आयन इज वेरी स्मॉलर इन साइज, and this is my sodium ion, which is comparatively bigger in size. Okay, now if I am taking the case of water, यहाँ पर पॉजिटिव है तो वाटर के ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, ऑक्सीजन इज अ नेगेटिव चार्ज, तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव में कौन सी रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। और अगर किसी भी का साइज बढ़ गया तो बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, वीक होगी, वीक होगी। केवल जो आपकी वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं वो इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज विद द साइज, अदरवाइज कोई भी और फोर्सेस, चाहे वो कोवलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, दे डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन साइज। So if I am taking the case of sodium, now sodium is quite bigger in size, so these forces are weaker as compared to lithium. So that's why and whenever bonds are being formed, chemistry में क्या होता है, जब bond formation में energy is released and during bond breaking energy is absorbed. तो जब भी इसमें bond form होगा तो energy will be released. Energy release means negative. Delta H hydration क्या होती है, negative. Why? Because the during bond formation energy is released. So this is line what I have said कि hydration enthalpy is maximum for lithium because lithium is very small in size, so that electrostatic forces with water will be strongest, so more energy will be released. तो ये बहुत important point है hydration enthalpy का कि if the smaller is the size, more will be the hydration enthalpy released. तो सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड कौन होगा इजली, लिथियम। तो ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, लिथियम आयन विल बी मैक्सिमम हाइड्रेटेड, ठीक है। मैम फिर ये और चार्ज पर hydrate- डिपेंड करेगी, तो मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगी, कुछ हद तक करती है, यस, चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करती है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी भी होगी, ठीक है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो रुबिडियम इज मैक्सिमम हाइड्रेटेड, क्लियर। अच्छा, अब इसका ना एक और कई पॉइंट है, ये कई बार क्वेश्चंस भी आते हैं, थोड़ा हॉट क्वेश्चन है, जेई मेंस का क्वेश्चन है कि अगर लिथियम आयन आपका ज्यादा हाइड्रेटेड है, व्हाट डज इट मींस, हाउ कैन वी रिलेट इट टू द मोबिलिटी, हाउ कैन वी रिलेट इट टू द मैम फिर उसकी मोबिलिटी मोबिलिटी कम होगी। ऑफ लिथियम आयन एंड सोडियम आयन, हाउ कैन वी कंपेयर, सोडियम आयन की मोबिलिटी लिथियम की कम होती है, सोडियम की ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि लिथियम आयन ज्यादा हाइड्रेटेड है, तो इट मींस उसके साथ बहुत ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो इस कंपैरेटिवली लिथियम का साइज क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया ना, क्योंकि लिथियम ने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया वाटर के साथ, तो उसके और वाटर भी उसके पास नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दैट आर अट्रैक्टेड टू द लिथियम विल बी मोर, तो लिथियम आयन का साइज बहुत बड़ा हो गया क्योंकि उसके ज्यादा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टेड, तो जितना साइज बड़ा होगा, जितना परसेंट मोटा होगा उतना धीरे मूव करेगा, तो इसमें भी ये मोबिलिटी ऑफ लिथियम आयन विल बी मोर एज इट विल बी लेस एज कंपेयर टू सोडियम, सोडियम की मोबिलिटी ज्यादा होगी, लिथियम की कम होगी। व्हाई लिथियम की मोबिलिटी कम है, बिकॉज ऑफ मोर हाइड्रेशन, इट इज मैक्सिमम हाइड्रेटेड, इज द पॉइंट क्लियर, हाउ कैन वी मोबिलिटी से रिलेट, क्या मतलब, मोबिलिटी का आपका आगे यूज आएगा ई नॉट वैल्यूज में, जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, मोबिलिटी मींस मतलब मोबिलिटी मींस मूवमेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर मैंने लिथियम कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो लिथियम आयन जो होंगे उनके पास वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर ज्यादा हो जाएगा, तो लिथियम आयन बिकम्स मोर हैवियर, so they won't move easily as compared to sodium ion. Okay, yes or no?
Yes, ma'am. ठीक है। और इस चैप्टर के लिए अपनी एनसीईआरटी साथ से तो अपना कुछ पॉइंट्स मैं एक्स्ट्रा करा रही हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब मैं एक टॉपिक करा रही हूँ ना, तो उससे रिलेटेड मैं पूरे पॉइंट करा रही हूँ आपको, कि आपको उसी में वो कवर अप हो जाए। नेक्स्ट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, फिजिकली तो करा रही हूँ, इसी में कंटिन्यू करा रही हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, दे आर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दे आर क्वाइट सॉफ्ट, silvery white and light metals. They are quite soft. सोडियम मेटल हमारी लैब में भी है, इट इज ऑलमोस्ट सिल्वर व्हाइट इन कलर, ग्रेइश लाइट ग्रे, ठीक है। दे आर क्वाइट सॉफ्ट, सिल्वर व्हाइट, लाइट मेटल्स with low density, with low density. Density increases in the order, density increases in the order, this is the increasing order of density, density increases in the order. Okay, what is density? Mass upon volume. Now why Yes, I am saying that their density is quite low? I am saying that they are the metals with a low density. अच्छा, इसका लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में एक पॉइंट बताया था, इनके रिस्पेक्टिव पीरियड में इनका साइज क्या होता है, ज्यादा होता है कम होता है? ज्यादा होता है तो वॉल्यूम क्या हो गया? ज्यादा। वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो डेंसिटी क्या हो गई? कम। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, इसीलिए मैंने आपको वो पॉइंट बताया था, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम इज ऑफ लिथियम, या इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स, उनका इन देयर लिख लो, इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स their size or volume is quite large. In their respective periods, their size or volume is quite large, so density is less. ठीक है। मास भी कम होते हैं, they are very light metals, मास भी कम है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो डेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई। तो अगर मैं लिथियम को और बेरिलियम वगैरह को कंपेयर करूंगी, रिस्पेक्टिव पीरियड में इनकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है। अच्छा, नाउ व्हाई डेंसिटी इज इंक्रीजिंग इन दिस ऑर्डर? Because of the size or mass? वो साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो डेंसिटी क्या होनी चाहिए? Decrease होनी चाहिए. वॉल्यूम, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैम। हाँ मैम, बोलो। अगर उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो उसका मास भी तो इंक्रीज हो रहा है उसके चार्ज से, तो डेंसिटी। तुम बोलोगे डेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए? नो। हम कांस्टेंट नहीं, आई मीन इसका रिवर्स ऑर्डर होना चाहिए ना शायद, आई थिंक फ्रेंडशिप का सबसे कम। या एनसीईआरटी के लाइन पढ़ो जो टॉपिक 10.1.5 है। ऑल द एल्कली मेटल्स आर सिल्वरी व्हाइट, जिसके पास है वो खोलो, दे आर सिल्वरी व्हाइट and having low density which increases from the lithium to cesium. Yes or no? Topic 10.1.5. So density is increasing from lithium to cesium. It means main किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? मास के ऊपर, ठीक है, because of the increase in mass. लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम, पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम, so you can write this like order. अगर आपको करेक्ट ऑर्डर चाहिए, जनरली एनसीईआरटी मतलब सीबीएसई में इतना रिक्वायर्ड नहीं है, बट दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन बोथ मास एंड वॉल्यूम, तो उसके कंपैरिजन में इसका रेशियो चेंज हो जाते हैं। वी डोंट हैव टू डू द डिटेल्स। ओके, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, flame coloration. Next physical property is flame coloration. Now, as I have told you in the table only that they give a typical color to the flame. Okay. Now, what is the reason? Just write down the reason. They give a typical flame coloration. They give a typical flame coloration because of the low ionization energy. They give a typical flame coloration because of the low ionization energy the heat from the flame of the burner, because of the low IE,
ionization energy के लिए capital I dot E. Because of the low ionization energy, the heat of the flame of the burner, is sufficient to excite outermost electrons to a higher energy level and when these electrons come back to the ground state, they release energy in visible range. And when these electrons come to the ground state, they release energy in visible range. अच्छा देखो किसी भी चीज के एक तो सब फर्स्ट थिंग यू नो द फ्लेम ऑफ द बंसन बर्नर. नहीं देखिए जो आपकी गैस के फ्लेम होते हैं ना बहुत स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेयर टू द इट वी कैन कंपेयर द फ्लेम ऑफ द बर्नर. आप लैब में आपने यूज किया है कभी बर्नर? अभी नहीं किया, अभी आप करोगे के टाइम्स में देखा है ना, तो उसकी एनर्जी बहुत कम होती है, बहुत स्ट्रांगली हिट नहीं कर पाते ना बर्नर पे. अगर सेम वाटर में गैस पे बॉयल करोगे तो 5 मिनट्स में हो जाएगा, बट बर्नर इट विल टेक 15-20 मिनट्स. ठीक है, बट व्हेन आई एम हीटिंग ऑन द फ्लेम ऑफ द बर्नर, जो इलेक्ट्रॉन्स है पहले वो ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है ना. ग्राउंड स्टेट से वो कहाँ चलेगा? ऊपर चलेगा हायर एनर्जी स्टेट्स. हायर एनर्जी स्टेट्स क्या होते हैं? अनस्टेबल. सो व्हेन दे रिटर्न बैक दे रिलीज एनर्जी. और मेन चीज क्या हमें कलर कब दिखते हैं? व्हेन इट लाइज इन द विजिबल रेंज. हम एमिशन स्पेक्ट्रा. इमिशन स्पेक्ट्रा किसी भी चीज में हमें कलर कब दिखेगा? जब वो विजिबल रेंज में. इफ इट इज अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड वी कांट सी. तो इनके केस में क्योंकि उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है तो जो कलर जो होते हैं दैट लाइज इन द विजिबल रेंज. सो दिस इज द रीजन व्हाई दे आर गिविंग द फ्लेम कलरेशन. इनफैक्ट जब आपने क्रैकर्स देखे होंगे, क्रैकर्स में कई बार निकलते हैं वॉयलेट कलर, अनार वगैरह में से रेड कलर क्यों होते हैं? क्योंकि इनके कंपाउंड्स एडेड होते हैं. क्रैकर्स में कंपाउंड्स एडेड होते हैं जो फ्लेम कलर देते हैं. अगर मैं उसमें कोई पोटेशियम का सॉल्ट डाल दूंगी तो कौन सा कलर आ जाएगा? बीच में वॉयलेट आ जाएगा. ठीक है, तो ऑल दीज आर यूज्ड इन द. अच्छा एक और यूज है, आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, उसमें हम कौन सा मेटल यूज करते हैं? इलेक्ट्रोड्स. सोडियम नहीं करते, पोटेशियम. पोटेशियम कर सकते हैं. जनरली हम क्या करते हैं? सीजियम एंड रुबिडियम. यू कैन राइट दिस पॉइंट. पोटेशियम भी कर सकते हैं. ठीक है, सीजियम, रुबिडियम एंड फ्रेंसियम. ये लिख लो, सिंबल ही लिख लो. फ्रेंसियम तो रेडियो एक्टिव है, इसको कंसीडर नहीं करते. पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम. और सीजियम भी इतना नहीं करते, तो मेन हम करते हैं पोटेशियम एंड सीजियम, क्योंकि रुबिडियम इतना इजी अवेलेबल नहीं है. ठीक है, पोटेशियम एंड सीजियम आर यूज्ड as electrodes in the photoelectric cell. Cesium and potassium are used as electrodes in the photoelectric cell. ठीक है, because they have low ionization energy and they can release electrons easily. सबसे कम ionization energy periodic table में अगर मैं उनको नहीं कंसीडर करते रेडियोएक्टिव को, किसकी होती है? सीजियम की. बस. ठीक है, okay. Now with this we have done the physical properties. Now I am taking the chemical properties. मैंने आपको पहले बताया कि चैप्टर बहुत ज्यादा छोटा है, 3 पीरियड्स में खत्म हो जाएगा मैक्सिमम. Now these topics have been deleted. टॉपिक नंबर 10.4 पहले केवल ग्रुप 13 में से बता रही हूँ. टॉपिक नंबर पूरा 10.4 सारे कंपाउंड सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड सब डिलीटेड है. टॉपिक नंबर 10.5. ठीक है, छोटा चैप्टर उसमें से भी आधा डिलीटेड है. ओके, 10.4 and 10.5. So now I am taking the chemical properties. Now in the case of chemical properties, so our first chemical property is
रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अच्छा, दो टॉपिक यहाँ पे इकट्ठे मिलके करा रही हूँ, उससे बहुत इजीली हो जाएगा चैप्टर शॉर्ट फॉर्म। और रिएक्शन विद ऑक्सीजन बता दो कैसे कराते हैं। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, now they are highly reactive. Alkali metals are highly reactive elements because of the low ionization energy. ठीक है, so these are highly reactive. Now since they are highly reactive, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। What is Fagans law? किसी को याद है Fagans law? Partial ionic character in covalent molecule. Okay, चलो मैं बता रही हूँ। That's also correct. That is one of the part of the Fagans law. Okay, जब lithium है, when lithium is combining with oxygen, what we get is lithium oxide, Li2O. ठीक है, lithium मैम reacts- पार्शियल कोवलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड्स था, वो उल्टा है। हाँ ठीक है, मैं किसी और में भी पूछ रही थी। चलो दैट्स करेक्ट, मैं वही बोल रही थी, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने बोला था ठीक है। ओके, लिथियम क्या फॉर्म करते हैं? सिंपल ऑक्साइड। दिस इज सिंपल ऑक्साइड। सिंपल मींस ऑक्सीजन इज इन द माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन की आपका ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस है, लिथियम की है +1। So lithium form a simple oxide. Now if I am taking is sodium, sodium can form sodium peroxide. What is the peroxide means? Oxygen to oxidation peroxide ion present. Sodium can form sodium peroxide. Peroxide होते हैं दो ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस. That is oxygen is in -1 oxidation state. ठीक है, O2 2 माइनस, यानी दो ऑक्सीजन है बट नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, सोडियम क्योंकि +1. So sodium, when I am reacting it with oxygen, it forms sodium peroxide as in addition to sodium oxide. ऐसा नहीं कि sodium oxide ही करेगा, but it can form sodium peroxide also. Lithium जो होता है, lithium cannot form peroxide. ठीक है, lithium cannot form peroxide, but sodium can form sodium oxide as well as sodium peroxide. Okay. Now, if I am taking this potassium, now potassium reacts with oxygen on heating to form potassium superoxide. In addition to peroxide and oxide. ठीक है, पोटेशियम पेरोक्साइड भी फॉर्म करेगा, सिंपल ऑक्साइड भी फॉर्म करेगा, बट इन एडिशन टू दैट इट विल फॉर्म पेरोक्साइड आल्सो, सुपर ऑक्साइड आल्सो. नाउ सुपर ऑक्साइड मींस व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन? -1. सुपर ऑक्साइड ही होता है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड. नाउ सुपर ऑक्साइड मींस O2 minus, 2 oxygen to the minus charge. So what is the oxidation number of one oxygen atom? -1/2. So what I am telling you that they all react with oxygen. ठीक है, lithium forms simple oxide only. Potassium, sodium can form sodium peroxide as well as simple oxide. But potassium and others. Potassium के साथ मैं rubidium भी ले सकती हूँ और cesium भी ले सकती हूँ. I can take any of these. So potassium, cesium and rubidium, they can form superoxides also. Now what is the reason? What is the reason that lithium forms simple oxide, sodium can form peroxide and potassium can form superoxide? What is the reason? अच्छा, इनमें से किसका साइज छोटा है? साइज किसका छोटा है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम? लिथियम का साइज छोटा है. अच्छा, सिंपल ऑक्साइड का साइज छोटा है जिसमें एक ही ऑक्सीजन एटम है, या पेरोक्साइड का साइज छोटा है जिसमें दो ऑक्सीजन एटम है? ऑब्वियसली जिसमें एक ऑक्सीजन एटम है. ठीक है, तो जो साइज होता है ना, इसका साइज क्या होता है? स्मॉलर होता है, इसका बिगर होता है. और अगर मैं सुपर ऑक्साइड को लूंगी, इसका साइज बिगेस्ट है. यस मैम. ठीक है, इसी तरह से अगर मैं लिथियम लूंगी, लिथियम आयन इज स्मॉलर इन साइज, पोटेशियम आयन क्या है मेरा? बिगर. और इनका साइज जो है बाकियों का, सॉरी सोडियम आयन इज बिगर. अब बाकी अगर मैं लूंगी पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन, सीजियम आयन, दे आर स्टिल बिगर. यस और नो?
Now this is another Fagran's rule. A smaller cation can stabilize a smaller anion. So lithium cannot form peroxide. Why? Because lithium being smaller in size, it cannot stabilize a peroxide or a superoxide ion. Okay? So reason लिख लो. Lithium being a smaller cation. ये 1 mark raising बहुत important question है. Lithium being a smaller cation can stabilize only a smaller anion. Can stabilize only a smaller oxide ion. Lithium being smaller in size can stabilize only a smaller oxide ion. Is it okay? So this point I have told you. Another point write down. The superoxides are yellow and orange, yellow or orange in color. नीचे लिखो the superoxides are yellow or orange in color. The superoxides are yellow or orange in color and also paramagnetic. The superoxides are yellow or orange in color and also paramagnetic. What is the reason for paramagnetic character? A color. Unpaired electron. Due to the superoxides are yellow or orange in color and also paramagnetic due to an unpaired electron in the antibond pi antibonding orbital. Due to an unpaired electron in pi antibonding molecular orbital. हम ऑक्सीडेशन बैलेंसिंग की है ना इसमें. हाँ बैलेंस करके लिखा. जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमेशा सिंगल एटम का होता है. इसीलिए यहाँ पर देखोगे मैंने सोडियम का भी ऑक्सीडेशन नंबर +1 लिखा है. एक सिंगल ऑक्सीजन का होता है -1. दो ऑक्सीजन का मिलाते होते हैं सुपर ऑक्साइड में -2. ठीक है. ओके नेक्स्ट पॉइंट लिखो. These oxides can be hydrolyzed in water. ये oxides के अंदर है. These oxides can be hydrolyzed in water as these oxides can be hydrolyzed in water as. अच्छा अब मैं इसको M2O लिख रही हूँ. M का क्या मतलब है? Na alkali matter. M means alkali matter. अच्छा सिंपल ऑक्साइड लिखा है, सुपर ऑक्साइड या पेरोक्साइड? क्या लिखा है मैंने? इस फॉर्मूले का N means Na alkali matter. It can be one sodium oxide, it can be potassium oxide. यहाँ पे बताया ना कि ये सोडियम जो है पेरोक्साइड भी बनाते हैं. इन एडिशन टू सिंपल ऑक्साइड तो सभी बनाते हैं. So if I am taking a simple oxide, it can be any of the simple oxide, and if I am adding water to it, what I am getting is metal hydroxide. कुछ भी बाई प्रोडक्ट नहीं बनता. What I am getting is metal hydroxide. Now if I am taking is a peroxide and I am adding water to it, what we are getting is metal hydroxide MOH plus hydrogen peroxide. You can balance the equation. Okay. मेरा ब्लूटूथ खाएंगे. Okay. Next, if I am taking is a peroxide, superoxide. This I have taken is a peroxide. Now, if I am taken is a superoxide, and to this superoxide, if I am adding is water, what I am getting is simple hydroxide plus hydrogen peroxide plus oxygen. You can balance the equation. कैसे करोगे बैलेंस? 2 वाटर से हो जाएगा? नहीं हुई. बैलेंस करो एक बार इसको.
तो एनसीईआरटी से देख लो बैलेंसिंग 2MO2 ओके। अच्छा यहाँ पर मैंने 2 करना भूल गई ना, हो गया बैलेंस। ठीक है, सो इफ आई एम टेकिंग ऑल ऑफ देम गिव हाइड्रोक्साइड बट पेरोक्साइड में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा, सुपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड ऑक्सीजन, so this is their hydrolysis of oxides. So I have told you easy है, देखो लग रहा है कोई मुश्किल है, बहुत इजी है, लकी हो कि पीरियोडिक अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि मुझे ये भी लग रहा था मैं सारे हैवी चैप्टर्स दे दूंगी तो हाइड्रोकार्बन्स के साथ तो आपको प्रॉब्लम होगी पीरियोडिक में। ठीक है, तो ये हो गया रिएक्शन विद ऑक्सीजन। नेक्स्ट लिखो रिएक्शन विद वाटर। क्या चीज वो भी रह गया ना अभी? अच्छा स्टेट्स ऑफ मैटर भी रह गया, हुआ नहीं था। अच्छा नहीं हुआ होगा तो फिर वो ले लेंगे इसके बाद, मेरे को तो ध्यान ही नहीं आ रहा वो चैप्टर अभी कि वो रह गया था। ओके, रिएक्शन विद वाटर। सेकंड इज रिएक्शन विद वाटर। नाउ व्हेन दे आर रिएक्टिंग विद वाटर, what will happen? They release hydrogen gas. Any matter when it reacts with water, they liberate hydrogen gas. ठीक है, ये तो बेसिक है आपका। सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, तो आई कैन राइट इट जनरली, बैलेंस कर लो। I can write it generally, any metal and it reacts with water, what I am getting is metal hydroxide plus hydrogen gas. Okay, अच्छा इनमें से इसमें भी इसमें चैप्टर में आपके रीजनिंग क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे या इक्वेशंस आएंगी। Now when I am reacting with water, जैसे लिथियम से बना लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम इज फॉर्मिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड। नाउ कैन यू टेल मी, आपको फजांस रूल मैंने बताया था, लार्जर कैटायन स्टेबलाइज द लार्जर एनायन, यानी फॉर अ कंपाउंड टू बी स्टेबल एनायन और कैटायन का साइज क्या होना चाहिए? ऑलमोस्ट सेम। अब इनमें से बता सकते हो, थक गया रहे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते? नो। अच्छा इनमें से बता सकते हो कौन सा ज्यादा बेसिक है? विच कैन बेसिक मींस विच कैन लूज OH माइनस आयंस इजीली। क्यों? किसका साइज OH छोटा है बड़ा है? एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। हाँ छोटा ही होगा, हाइड्रोजन तो स्मॉल। ठीक है, सीजियम बड़ा है, तो इट मींस दैट इफ आई एम कंपेयरिंग देयर बेसिक कैरेक्टर, इट इज मोस्ट बेसिक। ये कंपाउंड आपको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं बेसिक है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड से ज्यादा बेसिक क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सो ऑल दीज आर बेसिक इन नेचर, सो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर। इसका रीजन बता देती हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर, increasing order of basic character. So you can write in this, with the increase in size of the alkali metal, with the increase in size of the alkali metal, M bond OH becomes weaker. With the increase in size of the alkali metals, M bond OH becomes weaker. ठीक है, बॉन्ड वीक हो गया तो दे कैन लूज OH माइनस इजीली। कितना हो गया टाइम? एक दो और करा देती हूँ। कल मैं तो केमिस्ट्री क्लास लूंगी नहीं, ऐश्वर्या मैम का भी पता नहीं है, लेकिन टेस्ट के लिए पढ़ लेना, टेस्ट होगा बस, क्लास नहीं होगी शायद, थ्योरी क्लास। ठीक है, नेक्स्ट लिखो रिएक्शन विद वाटर हो गया, हाइड्रेशन एंथैल्पी भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। ओके मैम कल क्लास नहीं है? कल टेस्ट दूंगी मैं, थ्योरी क्लास शायद नहीं हो पाएगी।
होगी तो मैसेज आ जाएगा, ठीक है। होगी तो ऐश्वर्या मैम के साथ कंबाइंड होगी, मैं नहीं लूंगी। होगी भी तो तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि वो एस ब्लॉक ही कराएंगे अभी तो, उन्हें स्टार्ट कराना है, मैंने आज पीरियड लेके करा दी। नेक्स्ट लिखो रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अब जल्दी जल्दी से, ये तो इजी है। रिएक्शन विद हाइड्रोजन और हेलोजन, दो प्रॉपर्टीज करा रही हूँ। रिएक्शन विद, एक ही बात है, हाइड्रोजन को H2 ही बोलते हैं, डाई हाइड्रोजन ही। रिएक्शन विद हाइड्रोजन दैट इज H2, हेडिंग दे दो, कुछ भी नहीं है इसमें। कोई भी एल्कली मेटल जब वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो व्हाट वी गेट इज मेटल हाइड्राइड। व्हाट आई एम गेटिंग इज मेटल हाइड्राइड, ठीक है। सो दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड। ओके, हीट करने पे, एंड ऑल दीज मेटल हाइड्राइड दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। बस ये पॉइंट याद कर लो, कुछ और नहीं करना। लास्ट प्रॉपर्टी जो करा रही है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस। reactivity towards halogens. अच्छा, now before I am telling you reactivity with halogens, मैं आपको बार बार फजांस रूल का पॉइंट बता रही हूँ। कैन यू टेल मी इन सब में से कौन सा सबसे ज्यादा कोवलेंट होगा, कौन सा सबसे ज्यादा आयनिक होगा? Which compound is more ionic? लिथियम। लिथियम इजिली आयंस बनाते हैं ना। आयोनाइजेशन एनर्जी किससे ज्यादा है? तो लिथियम तो इजिली लूज ही नहीं करता। लिथियम इज अ हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, तो लिथियम तो इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करता। तो सबसे ज्यादा आयनिक कौन सा होगा? सीजियम होगा। वैसे भी सीजियम का साइज इतना बड़ा है, सीजियम और क्लोराइड इट मींस CH प्लस Cl माइनस, तो इट मींस दैट लिथियम क्लोराइड तो एक्चुअली में आपने अगर वो पहले पढ़ा था डायगोनल रिलेशनशिप, लिथियम क्लोराइड्स आर कोवलेंट इन नेचर, लिथियम कंपाउंड्स आर कोवलेंट इन नेचर। तो ये कंपाउंड आपका आयनिक होगा, एंड दिस कंपाउंड इज, ये कोवलेंट है, दिस कंपाउंड इज आयनिक। व्हाई? because of lowest ionization energy of cesium, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट बताओ, आराम से देखना, फजांस रूल है। लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, विच इज मैक्सिमम मोर कोवलेंट? सबसे ज्यादा कोवलेंट कौन सा होगा? लिथियम फ्लोराइड, बताओ। मैम लिथियम आयोडाइड। लिथियम आयोडाइड। अब इसका रीजन लिख लो। हम स्मॉलर कैटायन और बड़ा एनायन। लिथियम आयोडाइड इज मोस्ट कोवलेंट। अच्छा लिखो पहले पॉइंट में, यहाँ पर लिखो लिथियम क्लोराइड LiCl इज कोवलेंट। अब दोनों के रीजन प्रॉपर लिखवा देती हूँ। LiCl इज कोवलेंट बिकॉज ऑफ smaller size of lithium, because of smaller size of lithium, its polarizing power, because of smaller size of lithium, मैं बाद में कंटिन्यू करा दूं, its polarizing power is more। अब ये बाद में कंटिन्यू कराऊंगी, ठीक है। चलो, कल का जैसे भी होगा यू विल बी नोइंग, ओके। All of you can leave the class. 1:30 तक थी क्लास। मैं डिस्पर्सल करा देती हूँ, ओके।